Well, student, once again welcome in the chapter carbon compound. Okay, so you know that in our previous video we have deals with the nomenclature, IUPAC nomenclature and the common name system nomenclature. Okay, now today our topic is the chemical properties of the carbon compound. In today's video we learns about the chemical properties of the carbon compound. Before we going to start the chemical properties of carbon compound, we have some questions, that is in the can you recall matlab you know that the answers of these questions. I am going to expect it from you that you have the answers of these questions. Okay, so let's have a look. So what is the first question? Which is the component of biogas that make it useful as a fuel? So what is our question? Which is the component of biogas? You know that, you know very well the biogas. Okay, तो बायोगैस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है which make it useful as a fuel, जो उसको फ्यूल है ना, एज अ फ्यूल करके यूजफुल, मतलब फ्यूल करके यूजफुल होता है. सो कैन यू हैव द आंसर? हाँ, यस. विच कंपोनेंट? यस, इट इज द मीथेन, है ना. विच कंपोनेंट? इट इज द मीथेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट? मीथेन. यू नो दैट इट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन. मीथेन इज द first member of the alkane, methane. Biogas is also called as the marsh gas. You know how you in the previous standard you have learned about the formation of the biogas, right? It is chiefly fuel, or we can say that it is the green fuel. And in the chapter green energy we learn details about the formation of the methane, right? So methane is the component which make. Then we'll focus on the another question. What is that question? Which product is formed by the combustion of the elemental carbon? अब एलिमेंटल कार्बन का कंबशन होने के बाद कौन से बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो एक CO2 फॉर्म होता है, बराबर है. कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है? बेसिकली आफ्टर द कंबशन ऑफ द एलिमेंटल कार्बन, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज एज वेल एज द लाइट. ओके, तो ये बेटा कंपोनेंट क्या होते हैं? एलिमेंटल कार्बन का कंबशन होने के बाद दीज बाय प्रोडक्ट्स और दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and in the presence of heat and the light is also produced. These are the product formed by the combustion of the elemental carbon. Okay, now let's focus on the third question. Is the biogas combustion reaction is endothermic और एक्सोथर्मिक? ओके, तो ये जो बायोगैस का कंबशन है ना, बायोगैस का कंबशन होगा, तो ये बायोगैस कंबशन रिएक्शन, ये आपको पूछा है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? अब सबसे पहले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये आपने 9th में पढ़ा है और 10th के भी जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा. ओके, तो एंडोथर्मिक मतलब द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्स द हीट, है ना. हीट जहाँ पे एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं बेटा? व्हेन द हीट इज गोइंग टू व्हाट, है ना, हीट इज इवॉल्व. जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, या वी मे से दैट गिवन आउट, है ना, इवॉल्व होती है या गिवन आउट, और राइट, या लिबरेट होती है. जिसमें हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है या लिबरेट होती है, उस रिएक्शन हमको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. इफ यू सी द कंबशन रिएक्शन ऑफ द कार्बन, मतलब बायोगैस का जो कंबशन होता है वहाँ पे आप देखते हो तो ये बायोगैस कंबशन के रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें भी हीट क्या होती है बेटा? गिवन आउट होती है. मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? बायोगैस कंबशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट. ओके, सो दीज आर द can you recall some questions are there and their answers are there. Okay, now we are going to focus the chemical properties of the carbon compound. Basically in this chapter we are going to study the 4 chemical properties of the carbon compound sequentially. Okay, so the first chemical properties of carbon compound is the combustion. पहली जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा वो है
कंबशन, ओके। दूसरी है ऑक्सीडेशन, राइट, है ना, कंबशन रिएक्शन यू मे कॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। सो पहला है कंबशन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तीसरी है बेटा एडिशन रिएक्शन, तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करेंगे दैट इज द एडिशन रिएक्शन, ओके। जो फोर्थ वन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो ये इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये चार केमिकल प्रॉपर्टीज या ये चार केमिकल रिएक्शंस हमें कार्बन कंपाउंड की क्या करना है, स्टडी करना है। समझ में आया? तो सीक्वेंशियली हम वन बाय वन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द कंबशन रिएक्शन, ओके। तो कंबशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है कि कार्बन जो है बेटा, है ना, कार्बन प्रेजेंट इन इट्स सो मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना, कार्बन के एलोट्रॉप्स है और वो एलोट्रॉप्स है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म में वो एलोट्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है, आपको पता है कार्बन के कौन से एलोट्रॉप है, तो राइट, हमने इसके पहले के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, बराबर है। तो बेटा ये जो कार्बन है, मतलब जिसको हम एलिमेंटल कार्बन बोलते हैं, जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में या डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होता है, बर्न होता है या क्या होता है, इग्निट होता है, इग्निट है ना, इग्निट या बर्न होता है, राइट। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो क्या होता है बेटा? बर्न या क्या होता है, इग्निट होता है। वो अपने डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होता है, बर्न होता है या इग्निट होता है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? कंबशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कंबशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंबशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कंबशन रिएक्शन। किसे बोलेंगे कंबशन रिएक्शन? कि कार्बन उसके एलिमेंटल फॉर्म में या व्हाट एलोट्रॉपिक, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होता है, इग्निट होता है या बर्न होता है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में वो क्या होता है, बर्न होता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? कंबशन। उसका क्या बोलते हैं? कंबशन या कंबशन रिएक्शन। बेसिकली एलिमेंटल कार्बन तो बर्न होता है ना। जब एलिमेंटल कार्बन बर्न होता है तो कौन से बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, हमने अभी पढ़ा है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, हीट है ना, रिएक्शन हम देखेंगे, और लाइट भी क्या होता है बेटा? इमिट होता है। अब एलिमेंटल कार्बन के अलावा भी कुछ हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मीथेन है, जैसे कि प्रोपेन है, बराबर है। ये भी क्या होता है बेटा? बर्न होते हैं, है ना। मतलब इनका भी क्या होता है? दे आल्सो पोजेसेस द कंबशन रिएक्शन। उसके बाद कुछ कार्बन कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल है ना, सम अल्कोहल्स आर देयर, दे आर आल्सो गोइंग टू बर्न, राइट, एंड फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, जैसे हाइड्रोकार्बन और सम अदर कार्बन कंपाउंड कंबशन रिएक्शन या बर्न होते हैं या इग्निट होते हैं। तो उस वक्त वो कौन से बेसिकली कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, कौन से बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, हीट फॉर्म होती है, लाइट फॉर्म होता है, और साथ ही साथ वाटर भी क्या होता है उसमें फॉर्म होता है। तो कुछ हम कंबशन रिएक्शन जैसे एलिमेंटल कार्बन की या कुछ हाइड्रोकार्बन की हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन देखेंगे हम वो एलिमेंटल कार्बन की, कि कार्बन कैसे बर्न होता है। तो कार्बन, राइट, पहली रिएक्शन कार्बन किसके प्रेजेंस में बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? बर्न होता है। तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस फॉर्म होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट, और साथ में लाइट। Okay, so this is the reaction, means elemental carbon is ignite in the presence of oxygen, right? What it form? It form the what? It form the carbon dioxide, heat and the light. क्या फॉर्म होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड द लाइट। ये हो गया तुम्हारा कार्बन, है ना। नाम भी दे सकते हैं हम रिएक्शन को, उनके नीचे नाम देना जरूरी है। ऑक्सीजन हो गया, एंड दिस वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।
राइट। आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे, इसलिए यहाँ पे ऐसा एरो हम लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि रिएक्शन के जो भी रूल्स है। अब दूसरा हमने बोला है कि हाइड्रोकार्बन का भी कंबशन होता है, तो चलो मीथेन नाम का एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे ले लेते हैं, उसका कंबशन देखो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बर्न होना है, मतलब किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कौन से बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है, पहला तो बाय प्रोडक्ट CO2 फॉर्म होता है, दूसरा वाटर फॉर्म होता है, बराबर है, और फिर हीट इवॉल्व होती है और लाइट इवॉल्व होता है, लाइट है ना, मतलब हीट और लाइट भी साथ में क्या होता है, प्रोड्यूस होती है। अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है, तो हाइड्रोजन 4 करो, हाइड्रोजन 4 हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, ये 2, राइट, कितने, ये 2 और ये 2, मतलब 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 करना है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2, बराबर। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। अब कार्बन 1 है ना, ऑक्सीजन 4 है, राइट, और हाइड्रोजन 4 है, तो ये रिएक्शन बेटा देखो, ये मीथेन है, राइट, मतलब बायोगैस प्लांट में जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, तो वो बर्न होने के बाद देखो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, राइट, एज अ फ्यूल करके। तो साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया बेटा तुम्हारा वाटर, ये हो गया व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन। तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे इथिल अल्कोहल, राइट, हमने बोला है कि कुछ सम अदर कार्बन कंपाउंड आर आल्सो CH3 CH2 OH, किसका फार्मूला ये इथिल अल्कोहल का, प्लस ऑक्सीजन, है ना, इसका भी कंबशन होता है, ये भी बर्न होता है, और सेम बाय प्रोडक्ट क्या करता है, फॉर्म करता है, जैसे कि CO2 H2O, then heat is also released and then light is also release, ओके बेटा। तो सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने इस साइड में, ये 3 और ये 2 5 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे 6 करना है, मतलब यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ओके, तो ये 3 और 2 6 हो गए हाइड्रोजन, ओके। अब ऑक्सीजन देख लो, इधर कितने हो गए, ये 3 है कि नहीं, और ये 2, so oxygen 3 and this is the 2, so 5 oxygens are there। अब यहाँ पे 5 करना है, मतलब यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, बराबर है, ये 2 और ये 2 4 और ये 1 हो गया ना 5, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस, ओके। नाउ कार्बन बैलेंस है कि नहीं, एक बार देख लो, कार्बन कितने, 1 और 2, कार्बन कितने बेटा, 2, तो यस सॉरी कार्बन 2, ऑक्सीजन 3 और ये 2 5 हो गए, कार्बन कितने, 2, मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 2 लिखना पड़ेगा, ओके। थोड़ा देख लो एक बार और, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड में कितने, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड में, ये 3, बराबर है। सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा यहाँ पे, 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे कितने हैं, व्हाट, 2 है, तो इसको 6 करना है, मतलब 3 लिखना पड़ेगा, ओके। अब 3 लिखने के बाद अब कार्बन, इस साइड में कार्बन कितने हैं, 2, बराबर है, तो 2 कार्बन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, कार्बन 2 हो गए। नाउ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करो, ये 2 और 2 4 और ये 3, 4 और 3 कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा तुम्हारे, 7। अब 7 करना है आपको, तो यहाँ पे कितने लिखना पड़ेगा मुझे, 3, चलो 3 और ये 2 6 और ये हो गया 7। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। अब देखो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, उसके बाद ये वाटर बाय प्रोडक्ट है, हीट और लाइट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है, बराबर है। तो ये 3 रिएक्शन बेसिकली कंबशन रिएक्शन में हमें स्टडी करना है। और साथ ही एक क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में दिया है कि प्रोपेन जिसका C3H8 बराबर है, तो क्या बोला है उन्होंने कि प्रोपेन जो है C3H8 ये इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट। ये कंबस्टिबल कंपोनेंट है कहाँ का, एलपीजी का। एलपीजी यू नो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ पे यूज होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? हम हमारे घर में जो
गैस यूज़ करते हैं सिलेंडर में, दैट इज़ द एलपीजी, जिसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नाम के कंपोनेंट है। तो प्रोपेन भी जनरली एलपीजी में यूज़ होता है। अब उन्होंने क्या बोला है कि राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द प्रोपेन। जैसे मीथेन बर्न होता है वैसे ही एलपीजी में प्रोपेन भी क्या होगा, बर्न होगा। तो ये प्रोपेन का रिएक्शन हमें लिखना है एज लाइक दिस रिएक्शन। तो चलो प्रोपेन का रिएक्शन बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रोपेन का ये CH3 व्हाट, CH2OH, सॉरी नॉट OH, प्रोपेन बोला है। तो ये हो गया बेटा प्रोपेन का फार्मूला। और किसके साथ बर्न होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट प्लस लाइट। ओके, हाँ। तो अभी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। ये रेफरेंस है आपके पास, कैसे बैलेंस करना है मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन कैसे, हर एक रिएक्शन का प्रिपरेशन करते समय आपने खुद वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना। रेडीली आपको तो अवेलेबल नहीं मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन के बारे में सोचो। अब हाइड्रोजन कितने इस साइड में, 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 8 करना है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर के पास 4 लिखना पड़ेगा। चलो 4 हो गए, ये हो गए 8। उसके बाद कार्बन के बारे में सोचते, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पे 3 कार्बन करना है, चलो ये 3 कार्बन हो गए। ओके, अब ऑक्सीजन, तीसरा कौन बचा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन काउंट करो इस साइड में, ये 3 और ये हो गए 6 और ये कितने 4, 10। अब 10 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे करना है। तो कितना लिखना पड़ेगा मुझे, ये यहाँ पे 5 है ना, ये हो गए 10। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैलेंस। मतलब आपको प्रोपेन की भी रिएक्शन उन्होंने लिखने के लिए बोला है। ये तुम्हारा बन गया प्रोपेन, बराबर है। ये ऑक्सीजन है, राइट, इन द प्रेजेंस इट बर्न और इट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये हो गया वाटर, और इसमें भी क्या फॉर्म होता है बेटा, हीट और लाइट क्या होता है, फॉर्म होता है। सो दिस इज अबाउट द कंबशन रिएक्शन। पहली कंबशन रिएक्शन या हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है किसकी, कार्बन कंपाउंड की, जो कि कंबशन रिएक्शन है। इतने सारे, मतलब खुद कार्बन भी क्या होता है, कंबशन पजेस करता है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स और कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ अदर कार्बन कंपाउंड भी कंबशन रिएक्शन क्या करते हैं, पजेस करते हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेटा व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So the next chemical properties of carbon compound is what, oxidation reaction। कौन सी है बेटा, oxidation reaction। okay, तो this is the another chemical property जिसको हम oxidation reaction बोलते हैं। Before we are going to start this oxidation reaction or the oxidation chemical properties of carbon compound, we have to go through the activity which is given in your textbook, that is the try this under the heading of try this। okay, तो इसमें ये जो एक्टिविटी हम स्टडी करेंगे बेसिकली, देखो मैं शॉर्टली आपको कैसे परफॉर्म करना है एक्टिविटी और उसके क्या रिजल्ट्स है वो यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें एपैरेटस है, बंसन बर्नर लगेगा आपको, कॉपर गेज और मेटल प्लेट, ये एपैरेटस लगेंगे। केमिकल इसमें इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नैप्थेलिन, दीज आर द केमिकल्स। तो एक्चुअली इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जैसे कि एक बंसन बर्नर, राइट, हम बंसन बर्नर यू नो वेरी वेल, लैब में बंसन बर्नर रहता है। ओके, सो दिस इज द बंसन बर्नर। ओके, तो ये आपका बंसन बर्नर हो गया, राइट। ये यहाँ पे फ्लेम। अब क्या करना है बेटा, बंसन बर्नर पे आपको ये जो केमिकल दिए हैं इसमें से एक वायर गेज रहता है, आपको पता है। तो ये जो वायर गेज, कॉपर वायर गेज लेना है, क्लीन कॉपर वायर गेज लेना है, बराबर है कि क्लीन कॉपर वायर गेज आपको लेना है। स्टैंड रहेगा है ना, स्टैंड पे उसको रखना है। तो ये जो केमिकल है इसमें से 4 to 5 ड्रॉप या पिंच, समझो सॉलिड स्टेट में है तो वो पिंच है ना, एक चिमूट भर या केमिकल पैकी केमिकल याच्यावर टाका, किंवा जर लिक्विड स्टेटमध्ये असेल तर 4 ते 5 ड्रॉप या 4 to 5 ड्रॉप्स आप ये कॉपर गेज है ना, क्लीन कॉपर गेज वायर पे उसको क्या करना है, डालना है, क्लीन कॉपर गेज, राइट। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसको बंसन बर्नर पे क्या करना है, हीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या होता है, बर्न होता है, उसका कंबशन होता है, कौन से टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ब्लू फ्लेम होती है,
या येलो फ्लेम होती है, सूटी सब्सटेंस फॉर्म होता है, क्या नहीं होता है, ये सब इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना। अब सबसे पहले आपने एक कंपाउंड लिया, सेम रिएक्शन आपको दूसरे कंपाउंड के साथ भी करना है, राइट। अब ये लेते समय आपको एक और बात करना है कि जैसे ही आपने पिंच ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डाल दिया, कुछ ड्रॉपलेट सब्सटेंस के डाल दिए और हीटिंग शुरू किया, तो एक मेटल प्लेट भी इस पे ऐसे रखना है, एक मेटल है ना, मेटल प्लेट भी इस पे रखना है, राइट। तो ये मेटल प्लेट पे मतलब कंबशन होने के बाद, उस सब्सटेंस का कंबशन होने के बाद ये मेटल प्लेट पे भी कुछ डिपॉजिट्स प्रोड्यूस होते कि नहीं, वो भी आपको क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है। मतलब सबसे पहले आप इथेनॉल लोगे, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड के लिए टेस्ट करो, उसके बाद ये सेम टेस्ट किसके लिए करो, नैप्थलीन के साथ टेस्ट करो, बराबर है। तो एक्चुअली समझो अब यहाँ पे हमने इथेनॉल और नैप्थलीन के साथ ये टेस्ट हमने की है। आपको पता है कि इथेनॉल ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है इथेनॉल? इट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बराबर है। और नैप्थलीन ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, नैप्थलीन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जनरली दे बर्न्स विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो कैसे बर्न होते हैं, उनका कंबशन होने के बाद जो फ्लेम फॉर्म होती है वो कैसे दे बर्न विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे बर्न विद अ येलो फ्लेम। कौन सी फ्लेम फॉर्म होती है? येलो सूटी फ्लेम। तो इसका मतलब कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब हम इथेनॉल के साथ ये टेस्ट करेंगे तो इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, बराबर। मतलब इस पे किसी भी टाइप का, जब आप इथेनॉल की टेस्ट करोगे तो ये जो मेटल प्लेट है इस पे किसी भी टाइप का मतलब डिपॉजिट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट, बिकॉज इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। व्हेयरएज व्हेन यू बर्न द नेप्थलीन और व्हेन यू taste the naphthalene in this test, so the yellow flame will be appeared and some deposits of the sooty yellow flame will be appeared and some deposits are formed on this metal plate। तो वो क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये हो गया बेटा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम फॉर्म करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम क्या करता है, फॉर्म करता है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? Why saturated hydrocarbon form a blue flame and why unsaturated hydrocarbon form a sooty yellow flame or sooty flame और black deposits है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब आप बर्न करोगे तो ब्लैक डिपॉजिट्स इस मेटल प्लेट पे फॉर्म होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इफ यू कंपेयर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथेनॉल एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक नैप्थलीन, जब आप नैप्थलीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इथेनॉल जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जब आप स्टडी करोगे तो व्हाट यू नोटिस कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन का प्रोपोर्शन है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज लार्जर एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप इथेनॉल और नैप्थलीन के इसमें आप कंपेयर कर सकते हो। तो नैप्थलीन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है या नंबर ऑफ कार्बन के जो पार्टिकल्स है वो इथेनॉल के कंपैरिजन में क्या है बेटा? ज़्यादा है। अब ज़्यादा है मतलब ये कम है, इसलिए इजीली ये क्या होते हैं? बर्न होते हैं, है ना। मतलब पूरा के पूरा इथेनॉल क्या होता है? बर्न होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट इसमें कम है। लेकिन नैप्थलीन में मतलब जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कंपोनेंट या कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, तो जब हम उसको बर्न करेंगे या उसका कंबशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स दे बिकम अनबर्न्ड। वो क्या रहेंगे बेटा? अनबर्न्ड रहेंगे। ज़्यादातर कार्बन जो पार्टिकल है वो क्या रहेंगे? अनबर्न्ड रहेंगे, है ना। वो अनबर्न्ड रहेंगे मतलब दे फॉर्म द सूटी फ्लेम, अनबर्न्ड रहेंगे। और जो है ना अनबर्न्ड रहने के बावजूद वो क्या होता है कि कुछ हॉट कार्बन है ना, उसमें कुछ हॉट कार्बन भी पार्टिकल रहेंगे। तो ये हॉट कार्बन पार्टिकल है वो कौन सा फ्लेम फॉर्म करेंगे? येलो फ्लेम, है ना। अनबर्न कार्बन पार्टिकल रहेंगे और ये येलो फ्लेम क्या करेंगे बेटा? फॉर्म करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे कार्बन पार्टिकल इसमें बर्न नहीं होते हैं, राइट। अब येलो फॉर्म करेंगे और अनबर्न रहने से, है ना, कुछ बर्न नहीं होंगे, उसमें से वो ब्लैक या सूटी फ्लेम क्या होंगी बेटा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या ब्लैक या सूटी फ्लेम क्या होंगी बेटा? फॉर्म होगी। तो ये समझ में आया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों सूटी फ्लेम या येलो फ्लेम क्या क्यों फॉर्म करता है, बराबर है।
नाउ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समझो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम या ब्लैक सूटी फ्लेम क्या कर सकता है, या ब्लैक सब्सटेंस क्या कर सकता है, येलो है ना, येलो सूटी फ्लेम फॉर्म कर सकता है, या ब्लैक सब्सटेंस भी उसमें डिपॉजिट हो सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ भी। लेकिन कब? व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, जब बर्निंग होगा और ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, बर्न होगा, लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, सो एट दैट टाइम दैट हाइड्रोकार्बन्स आल्सो बर्न्स विथ अ येलो सूटी flame. Understand? So this is about this activity. Okay, from this activity you can bifurcate the why the saturated compound can form the blue flame and why the unsaturated compound can form what, yellow sooty flame. Understand? Okay. So oxidation reaction. Okay, so oxidation reaction means what, or oxidation chemical property क्या होती है? तो actually carbon or the carbon compound when it perform the combustion, कार्बन का जब combustion होता है तो जनरली वो दो बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है, CO2 और वाटर। तो एक्चुअली जब कार्बन का कंबशन होता है या किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन होता है, वो जो जब इग्निट होता है तो क्या होता है कि उसमें जो बॉन्ड्स है, उस कार्बन कंपाउंड में जो भी बॉन्ड है वो कंप्लीटली क्या होती है बेटा, ब्रेक होती है। और कार्बन कंपाउंड में होने वाले जो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होने के बाद और किसके प्रेजेंस में बर्न होता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है। मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, यूज ऑफ होता है, और उसका उसमें के जो भी बॉन्ड है वो क्या होते हैं, कंप्लीटली ब्रेक होते हैं और नए कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं। जैसे कि नए कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं विथ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जैसे कि CO2 और वाटर, ये कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब ये जो कंबशन प्रोसेस में जो क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है बेटा, कंप्लीटली मतलब ऑक्सीडाइज होता है, राइट। तो जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू द अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडेंट और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, बराबर है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है कि वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन क्या करते बेटा, सप्लाई करते। किसके लिए, अदर कंपाउंड को वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। किस लिए, सो एज टू परफॉर्म द ऑक्सीडेशन और सो एज टू डन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, दूसरे को देते, दूसरे सब्सटेंस को देते, किस लिए, टू परफॉर्म द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली पोटेशियम परमैग्नेट ये और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बेसिकली बेटा क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से मैंने बोला है, पोटेशियम परमैग्नेट और दूसरा परमैग्नेट और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के होने के लिए क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अब ये इसके बेस पे भी एक एक्टिविटीज़ है, वो हम देखेंगे कि कैसे पोटेशियम परमैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट दूसरे सब्सटेंस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो वो एक्टिविटी भी हम अभी देखेंगे। ओके, सो वी विल सी द एक्टिविटी हाउ द पोटेशियम परमैग्नेट कैन बी, पोटेशियम परमैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके कैसे एक्ट होता है, बराबर है कि नहीं, या ऑक्सीडेशन के लिए कैसे हेल्प्स करता है, ये हमें इस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ना है। तो बेटा देखो, इसके लिए apparatus लगेंगे आपको, टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर है, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, ड्रॉपर लगेगा। जो केमिकल्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है इथेनॉल, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट लगेगा और पोटेशियम परमैग्नेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैग्नेट जो कि क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो क्या प्रोसीजर है इस रिएक्शन की, सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, राइट। सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब, राइट। सो यू हैव टू टेक द टेस्ट ट्यूब में ऐड 2 to 3 ml ऑफ इथेनॉल, इसमें इथेनॉल लेना है,
2 या 3 ml इथेनॉल लेना है, उसमें नियर अबाउट 5 ml क्या ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में 2 to 3 ml इथेनॉल लेना है, राइट, और उसमें क्या ऐड करना है, सोडियम 5 ml सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉल का क्या बन गया बेटा सॉल्यूशन। अभी ये टेस्ट ट्यूब आपको बराबर है क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, वार्म करना है। किस पे, बंसन बर्नर पे उसको क्या करना है, वार्म करना है, नॉट हीट। वार्म मतलब हीटिंग करना है लेकिन थोड़ा कम हीट करना है, मतलब उसको आपको क्या करना है बेटा, वार्म करना है। ओके, उसके बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उस टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको उस टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है, पोटेशियम परमैंगनेट विथ अ कांस्टेंट स्टरिंग। और जैसे आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करोगे, सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब, तो वो क्या करना है, आपको स्टर करना है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट क्या करना है बेटा, ऐड करना है। अब जब आप ऐड करोगे तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होंगे। तो कौन से क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या होता है, कुछ आप क्या ऑब्जर्वेशन, कौन से ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है पिंक है ना, पिंक कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट वो टेस्ट ट्यूब में रहेगा क्या, शुरू में, है ना। उसके बाद वो वैनिश होगा क्या, है ना, या वैनिश मतलब डिसअपियर होगा, या है ना, जैसे जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डालेंगे तो वहाँ पे पिंक कलर रहेगा क्या, है ना, वो या वैनिश होगा या परमानेंटली वो सॉल्यूशन पिंक कलर का रहेगा, बराबर ही नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस आपको क्या करना है, चेक करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर वहाँ पे रहेगा क्या, या कुछ देर में वो वैनिश होगा, या पिंक कलर वो उसमें मतलब परमानेंटली वहाँ पे वो सॉल्यूशन पूरे पिंक कलर का रहेगा क्या, है ना, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का है, पिंक कलर का है, बराबर इनकी। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू, अब इनिशियली इसमें क्या होता है कि जब आप उस सॉल्यूशन में क्या डालोगे बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, तो इनिशियली जैसे ही आपने पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो क्या होगा कि इनिशियली उसका कलर आपको जैसे ही डाल दिया तभी वो पिंक कलर हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम दैट पिंक कलर बिकम वैनिशेस, राइट। और आप डालोगे, शुरू में वो पिंक कलर दिखेगा फिर वैनिश होते जाएगा, है ना, फिर डालोगे, शुरू में पिंक कलर दिखेगा फिर वैनिश होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर शुरू में वो वैनिश क्यों होता है या डिसअपियर क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो इथेनॉल है, बराबर है, तो ये इथेनॉल रिएक्शन में जो इथेनॉल है जो कि कार्बन कंपाउंड है, इथेनॉल जो कि क्या है बेटा, कार्बन कंपाउंड है, इसका क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडाइज। किससे ऑक्सीडाइज होता है, बाय द पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट से ये इथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड। और किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन हम देखेंगे कि एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि ये जो इथेनॉल है जो हमने इस रिएक्शन में लिया है, ये इथेनॉल क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज, दिस इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय द पोटेशियम परमैंगनेट एंड टू फॉर्म द एसिटिक एसिड, है ना, नया कंपाउंड फॉर्म होता है एसिटिक एसिड, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो चलो ये क्या एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन, मतलब इथेनॉल का, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इथेनॉल जो कि कार्बन कंपाउंड है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इथेनॉल फार्मूला CH3CH2OH, और ये हो गया, इसका कन्वर्शन किस में होता है, CH3C डबल बॉन्ड और ये OH, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। और किसके प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, और कौन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज द इथेनॉल, राइट, दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट एंड दिस वन इज द एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज द एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे,
इथेनॉल का जो कि कार्बन कंपाउंड है उसका क्या हो गया इधर ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया इधर ऑक्सीडेशन हो गया, बराबर है। और किसमें कन्वर्ट हो गया वो ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिडिक एसिड को। देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसको लगने वाला जो ऑक्सीजन है वो किसने सप्लाई किया, पोटेशियम परमैंगनेट में, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेंट। तो ये रिएक्शन होगी बेटा ऑक्सीडेशन की, जिसमें इथेनॉल का कन्वर्शन एसिटिक एसिड में हो गया, मतलब इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज बाय द पोटेशियम परमैंगनेट टू द एसिटिक एसिड। ओके, अब ये जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे कि शुरू में, अब एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जब आप ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके देखोगे तो अल्टीमेटली एंड पॉइंट क्या आता है। तो इनिशियली देखो हम फिर रिएक्शन पे आते हैं कि इनिशियली टेस्ट ट्यूब में आपने 2-3 ml इथेनॉल लिया, बराबर है, उसमें आपने डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट डाला 5 ml और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने क्या डाला उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट आप उसमें ऐड करते हो और स्टर करते हो। तो इनिशियली पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही डाल दिया कलर आ जाता है, आप जब परफॉर्म करोगे ना एक्चुअली तब आपको ये पता चलेगा। तो ड्रॉप डाल दिया तो ये फिर वो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर शुरू में डिसअपियर हो जाएगा, राइट, आप डालते जाओगे डिसअपियर होते जाएगा, डालते जाओगे डिसअपियर होते जाएगा। ये कब तक चलेगा, मतलब अब ये क्यों डिसअपियर हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके में ना, ये और क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या हो रहा है बेटा यूज ऑफ हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट यूज ऑफ हो रहा है। कौन यूज कर रहा है, इथेनॉल, किस लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। एट सर्टेन पॉइंट पे हमें ऐसे दिखता है कि जो पिंक कलर है वो डिसअपियर नहीं होता है, मतलब सर्टेन पॉइंट पे जब इथेनॉल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तब आपको वो टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर दिखेगा, है कि नहीं। उसके बाद आप जब पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डालते जाओगे तो पूरा सॉल्यूशन आपको कैसे दिखेगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन दिखेगा। अब उस वक्त वो डिसअपियर नहीं होगा, इसका मतलब दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर रिएक्शन। जिस वक्त पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, उसके बाद वो डिसअपियर नहीं होगा, वो आपके रिएक्शन का क्या आएगा बेटा, एंड पॉइंट आएगा। मतलब ये क्या इंडिकेट होता है कि उस वक्त इथेनॉल का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट होगा। ओके, तो इस तरह से बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दिस पीरियड वी लर्न द 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। पहली हमने कंबशन केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है और दूसरी ऑक्सीडेशन, और इसमें जो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज अभी बची है जिसमें एडिशन रिएक्शन है और दूसरी है बेटा सब्स्टिट्यूशन। तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।